types of nouns: concrete nouns, abstract nouns, count nouns, and non-count nouns. We already learned about what is noun and the two different types of noun. यानी कि आप ऑलरेडी क्या सीख चुके हो, आपको पता है कि noun क्या होता है. Still, I will give a brief idea about what is noun. So, then what is noun? Naming words, right? You remember now? Naming words. All things that are around us, we can name that thing, like this chalk, book, then mobile, camera, fan, tube light, this blackboard. So all are nouns, and there are more two different types of noun that are common and proper nouns. We already studied in earlier, but common nouns are those which suggest and give the idea of group. यानी कि आप जब स्पेसिफाई ना करो कि आप कौन सी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मंथ, तो महीने तो कई सारे होंगे. ठीक है, महीने तो कितने हैं? 12 महीने हैं. लेकिन इसीलिए क्या हुआ, महीने बहुत सारे हैं, लेकिन आई डिडंट स्पेसिफाई, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से महीने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. यानी कि ये हो गया कॉमन नाउन. दैट मंथ आर मंथ, द वर्ड इज कॉमन. बट इफ आई से January, then what is January? January is the specific name of a particular month. यानी कि क्या हुआ, जनवरी एक महीने का नाम है. That's why the specified name of a particular thing is called proper noun. जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं एक नेम को, तब ये क्या हो जाता है, proper noun. If I say road, road यानी कि रास्ते. रास्ते तो कई सारे होंगे, आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, सभी जगह. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि रास्ते तो सभी जगह पे है. लेकिन व्हेन आई से रेस कोर्स, रिंग रोड, you go for rides and other things then, right? For race course. That's why when I specify the name race course, ring road, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा था पहले, रोड. रोड तो कई सारे होंगे, लेकिन what I did here, मैं यहाँ पे क्या किया, I specified the name of road, that is race course ring road. race course ring road तो कहाँ पे, सिर्फ राजकोट में. यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रोड कई सारे, आई जस्ट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ रोड. मैंने यहाँ पे क्या किया, रोड का एक नाम लिखा. दैट इज ओनली वन. रेस कोर्स रिंग रोड इज ओनली वन, राइट? दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन, राइट? नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर टाइप्स ऑफ नाउन्स. Now you know what are nouns, and know the two types of nouns that are common and proper nouns. So now we will move on to the first type of noun, that is concrete nouns. What is the meaning of concrete noun? इसका मतलब क्या होता है concrete noun का? Things that we can touch, see, then smell, are which noun? Concrete noun, right? So
there are different things that are known as nouns and we have named those things, यानी कि हमने क्या किया, सभी चीजों के लिए एक नाम रखा है। लेकिन ऐसी चीज है जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्क्रीट नाउन। अगर मैं बोलूं कि ये चौक है तो मैंने इसको टच किया, राइट, और आप इसे देख भी सकते हो, मैं भी देख सकता हूं, तो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन, चौक, राइट। Now what you are holding right now in your hand, mobile, right? So you have mobile in your hand, so you can touch the mobile, so you touch the mobile, right? So mobile is also a concrete noun because you can touch that thing and you can see that thing. Now as I said here, chalk, mobile, all things you can touch. It can be also teddy bear, then bag, then gun, things that you can see. जब भी आप किसी चीज को देख सकते हो और आप उसको छू भी सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, what we will call that type of noun, concrete noun, right? Can you give me another example of that? Do you like cake? Right? So, cake. So, whenever you go to a cake shop, you can see the cake, right? You also eat that cake, so you have to touch that cake. So, in that way, the things that we can touch, see, and smell are concrete noun. Then it can be also flowers. It can be anything, right? Whichever the thing you can touch in your home, fan, table, your water bottle, right? Your books, your bag, that are concrete nouns. Now we'll talk about what are abstract nouns. Correct? So now you understand the idea of concrete noun. अब समझ चुके हैं कि कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलते हैं, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? वी कैन नॉट टच एंड सी, राइट? सो दोस टाइप ऑफ नाउन, ऐसी चीज है जो हम छू नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि क्या, हमको वो दिखाई पड़ता है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन हम क्या उसको क्या नहीं कर सकते, उसको छू नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते। इसीलिए ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते, राइट? नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर व्हाट, इट कैन बी like happiness, right? Happy, then sad. सपोज कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको एक खिलौना ले दिया आपके बर्थडे पर, तब आप बहुत खुश होंगे, राइट? यू विल बी हैप्पी एट दैट टाइम, बट विल यू बी एबल टू टच दैट हैप्पीनेस ऑफ योर? आप अपनी खुशियों को क्या छू सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या आप उसको खुशी को देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसको आप छू नहीं सकते, राइट? सो दिस टाइप ऑफ नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक हैप्पी, सैड, देन लव. इफ यू से दैट यू लव आइसक्रीम, अगर आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है और ये बोले कि आई लव आइसक्रीम, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते, आइसक्रीम को तो छू सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच लव एंड यू कैन नॉट सी लव, राइट? क्या आप अगर ये बोलेंगे कि आपको आइसक्रीम पसंद है, लेकिन आप क्या नहीं कर पाएंगे, जो वो लव है आइसक्रीम की तरह, वो उसको आप छू नहीं सकते. That's why this type of nouns are abstract nouns. So once again we will give you the idea of what are concrete noun and abstract nouns. Concrete nouns are those which we can touch, see and smell, जिसको हम छू सकते हैं,
राइट, और जिसको हम देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नाउन को कॉन्क्रीट नाउन। और जिस नाउन ऐसी चीज है जो हम छू नहीं कर सकते, राइट, ये हम वी कैन जस्ट फील दैट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक वी फील हैप्पीनेस, वी फील सैडनेस, वी फील लवलीनेस, हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू काउंट एंड uncountable nouns. हम अब क्या सीखेंगे, जो बाकी रह गए कौन से दो टाइप, काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स, राइट। Now only two nouns are remaining. First is count nouns. Now, what is the meaning of count? जिसको आप गिन सकते हैं, राइट। दिस अगर मान लो कि आप कोई भी ये बोलो कि मोबाइल, तो मोबाइल, इफ आई से मोबाइल, राइट, it is one mobile. Why? Because it is a singular noun, यानी कि एक ही मोबाइल है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मोबाइल्स, यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा मोबाइल है, राइट। लेकिन अगर एक से ज्यादा मोबाइल है तो आप उसको गिन सकते हो कि 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, 5, 6, 7, ठीक है। That's why we change singular into plural noun, यानी कि यहाँ पे मोबाइल एक ही है ताकि आप गिन सकते हो कि नहीं ये एक ही मोबाइल है। लेकिन मोबाइल से अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाता है, कई सारे मोबाइल है, लेकिन फिर भी आप उसको गिन सकते हो कि कितने मोबाइल्स आपके पास है। Which we can, so the count nouns are those which we can count, जिसको हम गिन सकते हैं। अगर आप ये बोलो कि आइसक्रीम, ठीक है, तो आइसक्रीम आप गिन सकते हो कि आइसक्रीम आपके पास कितना है, राइट। इसी तरह अगर मैं ये बोलूँ आपको कि बुक, और अगर इसको मैं प्लूरल करूँ, इफ आई चेंज इट इनटू प्लूरल नाउन, that is books, but still you can count how many books are there. इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, count nouns। क्यों? क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, right? Now what else can be there? If I say fan, right, then plural will be fans, but still हम गिन सकते हैं कि हमारे घर में कितने पंखे हैं, कितने फैन हैं, right? Then ट्यूबलाइट, इसको भी हम गिन सकते हैं कि हमारे घर में कितनी लाइट्स है, राइट। इसी तरह जिस भी चीज को हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मेरे पास ये बुक है तो मेरे पास 1 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, तो हम गिन सकते हैं उसे, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, काउंट नाउन्स, व्हिच वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं। नाउ we will understand the second and the last type of noun, that is non count. Non count nouns, right? Now what I have told you about count nouns, मैंने आपको count nouns के बारे में क्या बोला था, याद कीजिए। जिस चीज को आप काउंट यानी कि गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, काउंट नाउन्स। नॉन काउंट यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम नहीं गिन सकते कि 1, 2, 3, इसी तरह ऐसे नाउन्स को हम बोलेंगे नॉन काउंट नाउन्स, व्हिच वी कैन नॉट
काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते, राइट। अगर एग्जांपल के लिए बोलूं, आप मम्मी को घर पे क्या बोलोगे जब आप सवेरे स्कूल पे आते हो कि मुझे दूध दीजिए, राइट। यू से दैट मॉम गिव मी मिल्क, राइट। लेकिन हम इसको हम गिन तो नहीं, आप गिन सकते हो क्या कि मिल्क 1, मिल्क 2, 3, 4 इतने सारे मिल्क, नहीं ना। इसको हम सिर्फ मिल्क ही बोलते हैं। दैट्स व्हाई there is only a singular noun of non-count nouns. इसको आप गिन तो नहीं सकते हो कि कितने सारे दूध हैं, 1, 2, 3 ऐसा बोल सकते हो, नहीं ना। इसीलिए ये क्या रहता है हमेशा एक वचन, यानी कि सिंगुलर नाउन, यानी कि आप मिल्क ही बोलोगे। इसको इसके पीछे एस, ईएस या कुछ नहीं लगा सकते प्लूरल करने के लिए, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं कि फायर, राइट, तो आप क्या लोगोगे, आप क्या बोलोगे, आग। ये तो नहीं बोलोगे कि आगे, आप कैसे बोलते हो कि फैन, फैंस, फायर, फायर्स, ऐसा नहीं बोलोगे। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट काउंट फायर, एंड दिस इज आल्सो अ singular noun. So remember, which are non-count nouns, we cannot turn it into plural nouns. जो भी non-count nouns है जिसको हम संख्या में गिन नहीं सकते, उसको हम क्या नहीं करेंगे, बहुवचन यानी कि प्लूरल नहीं कर सकते। That's why we can only say or write milk and fire. अगर मैं आपको रेत के बारे में बोलूं, सैंड, ठीक है, सैंड यानी कि रेत, रेगिस्तान जो होता है इसमें रेत होती है, वो रेत। तो रेत आप अगर हाथ में लोगे तो आपको उसको गिन सकते हो कि 1 रेत, 2 रेत, नहीं ना। दैट्स व्हाई सैंड इज आल्सो अ नॉन काउंट नाउन एंड इट इज आल्सो ओनली अ सिंगुलर नाउन, राइट। Now I will explain once again that count nouns are those which we can count into numbers 1, 2, 3, 4. If I say pages, यानी कि pages of book, तो आप उसको काउंट कर सकते हो, उसमें नंबर भी होगा, 1 पेज, 2 पेज, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, राइट। So this type of nouns are count nouns, and opposite of that count non-count nouns are those which we cannot count into numbers. There are milk, fire, sand, and many things are there that we cannot count in numbers. So अब आपको clear हो गया। Concrete nouns are those which we can see and which we can touch, जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हो। वो क्या बोला था मैंने, concrete nouns, right? And abstract nouns are those which we cannot see and cannot touch, जिसको हम छू नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, right? अगर मैं आपको बोलूं कि खुशियां, तो खुशियां को मैं छू नहीं सकता। Those are abstract nouns, and I said recently about count nouns which we can count, जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, count nouns। And last, नॉन काउंट नाउन्स, ऐसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, और उसको हम क्या नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन में ही रखेंगे। वी विल नॉट एंड वी कैन नॉट टर्न इट इनटू प्लूरल नाउन। इसलिए इसके पीछे, यानी कि सिर्फ अगर मान लीजिए कि मिल्क है, तो मिल्क जैसा कि मैंने बोला दैट इज नॉन काउंट नाउन, सो वी कैन नॉट काउंट मिल्क, सो वी कैन नॉट ऐड हियर एस, es or anything to make it plural. That's why non-count nouns are only a singular noun always. And now, as you know all about these different types of noun, you can learn it by yourself at home. Thank you.